Welcome back everyone to our session on prayer and intercession. सबका फिर से स्वागत है प्रार्थना और मध्यस्थी में। So before we proceed with the session, I'm going to request few of us, whatever you learned in the first and second session, something that you remember. तो हम इससे पहले जो भी सीखे हैं पहले सेशन में, आप में से कुछ लोग जो जिनको याद होगा या जो बोल सकते हैं, अपना हाथ उठाएं, भाई यहाँ पर माइक देंगे। So you can tell it in your own words. See, Hindi I may not be able to understand, but it's enough you understand. वैसा आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी में भी, जरूरी नहीं कि इनको वो समझ में आए, लेकिन आपका समझना जरूरी है। So if you can pass on the mic, whoever, can you raise your hand as somebody who wants to share from the first and the second session, something that you learned? जो भी आपने सीखा हो पहले या दूसरे सेशंस में से, yes, आप में से कोई बोलना चाहेगा? Prayer, we should pray to God knowing who God is and who we are in Christ. We should not be praying as a ritual or something. We should pray from our heart only. We should never pray with double-minded or something. We should be praying according to what God's will is. We should know and work according to it only. Thank you. Wonderful, wonderful. Let's clap. See, what encourages a teacher is if you're listening, then that encourages us. That's why I'm asking. Promises are to proclaim. So ask and receive. As Jesus is our role model, he never failed and he will not. Amen. Amen. Praise God. Thank you. So anyone here? इस तरफ से कोई बोलना चाहेगा? बोलना है, मतलब हाथ उठाओ। You can tell in Hindi also, no problem. ब्रदर आप बस दे दो किसी के हाथ में। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इस प्रकार आत्मा भी हमारी प्रार्थना में दुर्लभता में सहायता करता है। Wow, wonderful. Thank you, thank you. So glad that you're all listening. Thank you. So we'll proceed. So we saw the purpose of prayer and we saw the crucial or the important things to build a good prayer life, the foundations of a good prayer life. तो हमने प्रार्थना का उद्देश्य के बारे में सीखा और ऐसी बुनियादी चीजें जो हमारे प्रार्थना जीवन में हमारी मदद करे। And then we saw the example of Jesus's prayer life. और यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन के बारे में हमने उदाहरण देखा। So let us see that there are some boundaries in prayer that we should not break. तो हम देखेंगे कि प्रार्थना में भी ऐसी कुछ सीमाएं होती हैं जो हमें लांघनी नहीं चाहिए। So we should never manipulate people's will because God has given each of us free will and we choose to do what we do. तो लोगों की इच्छा के साथ चाल चलना और उन पर नियंत्रण करना या उन्हें जबरदस्ती करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें प्रार्थना में। And another thing is, we already saw that we cannot contradict or change God's word and the overall plan for the mankind. परमेश्वर के वचन का और मानव जाति के लिए कुल योजना का खंडन करना या उससे बदलना भी नहीं चाहिए। And this is something that we should know about the life of Apostle Paul. तो हम पौलुस के बारे में, पौलुस के जीवन के बारे में हमें जानना चाहिए। So we often use this verse, my grace is sufficient for you. तो हमने ये वचन देखा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। So we see that Paul had an abundance of revelation from God's word.
तो हम देखते हैं कि पौलुस को परमेश्वर ने बहुत अधिक चीजों या बातों के बारे में प्रकट किया था। See, almost 2/3 of the New Testament, the epistles were written by Apostle Paul. तो 2/3 जो नए नियम का है वो पौलुस ने लिखा है। He was not among the disciples of Jesus, वो परमेश्वर के चेलों के बीच में से नहीं था, but there were revelations of the Holy Spirit when he was alone with God. तो वो उन चीजों के बारे में है जो पवित्र आत्मा ने उसे प्रत्यक्ष या प्रकट पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण से उससे पता चली है, उन चीजों के बारे में उसने लिखा है। So the Bible says, in order that he should not boast of it, a thorn was given in his flesh. तो वचन ऐसा कहता है कि वो इन चीजों के बारे में घमंड न करने पाए, जो अगर उसने ऐसे किया तो उसके शरीर में एक कांटे की तरह होगा। So, we see that Paul prayed to God about this thorn of flesh. तो हम देखते हैं कि पौलुस ने परमेश्वर के प्रति इस बारे में प्रार्थना की। So in fact, Bible says he pleaded with God. वचन ये कहता है कि वो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर याचना करने लगा। But the answer he got was, my grace is sufficient for you. पर उसका उत्तर उससे ये मिला कि परमेश्वर ने जब कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। My strength is made perfect in your weaknesses. मेरी शक्ति तुम्हारी निर्बलताओं में काफी है। So there are times, even there can be times in our lives, there will be times in our life that we might face oppositions and we might face struggles in our lives. तो हमारे जीवन में ऐसा भी समय आएगा जब हमें दूसरों से किसी तरह की रुकावट, बाधाएं या ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आप किसी तरह की परेशानियां जब आएंगी। But through that, God will work out His perfect will in us. पर उनमें भी परमेश्वर अपनी जो पूरी इच्छा है वो हमारे जीवन में लेकर आएगा। We see that Apostle Paul, after his encounter with Jesus in this matter, तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का और पौलुस का आमना सामना हुआ, he accepts the answer of Jesus. वो यीशु मसीह के जो उत्तर को स्वीकार करता है। See how much he has done for the Lord, how many epistles he has written, and how many mission trips he has gone. Still, we see the humility of Paul in this, to completely accept God's will. He's surrendering to God's will. तो देखते हैं कि उसने बहुत सारे ऐसे सेवकाई की यात्रा की है, बहुत सारे काम किए हैं, और वो देखता है कि इसके बावजूद भी हम वचन में देखते हैं कि पौलुस किस तरह से विनम्र होकर परमेश्वर ने जो उसको कहा उस चीज को स्वीकार करते हैं। So it is something, it was sent to buffet, Satan was pressurizing him. It was something from the demonic. It is not actually physical. It's like a demonic oppression. Yeah, it could be. And also it's like, we don't know exactly what this thorn in flesh was, because it says thorn in flesh. And it's also from the demonic force. But God allowed it. And then because of that, he was able to, in spite of that, he was able to go forward in his purposes for the Lord. Because he accepted God's word. So God's strength and God's grace was available to him more and more and more. See, to the humble, he gives more grace. So we see that, previously we see that, no, it's like just not to boast of it, this was sent. Like, and the Bible says God is against the proud. So even in our own life, we would have gone through many situations in our life. Like God would have allowed certain things in our life. Not exactly like what is mentioned here. See, Apostle Paul had an abundance of revelation. We are nowhere close to Apostle Paul, but those people, those situations and those things would have actually straightened us out to follow God's will. You know, like we would have aligned ourselves in God's will and just go forward. See, even anything the evil one means for our
evil one always comes to steal, kill, and destroy. That's his only intention. See, he might come very deceptive, but his only thing is to steal, kill, and destroy. But God uses that also for our good and for his glory. Amen. So, yeah, it's okay. Thank you. Thank you for that question. Yeah. There are some things that, gradually we will learn in our prayer life. As we spend more and more time with God, it's a step-by-step thing. See, I remember in my life, like when I was young like you, I'll only go to God when I needed him. तो कुछ चीजें जो है हमें प्रार्थना जीवन में एक सीढ़ी चढ़कर जैसे पता चलेगी, एक धीरे धीरे हम इस बारे में आगे सीखेंगे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, Example, when the exams are coming, जब मेरे परीक्षा नजदीक आते थे, oh, my prayer life will be so vibrant. तो तब मेरा प्रार्थना जीवन बहुत ही ज्यादा मजबूत और Lord, this paper, Lord, I still remember, I think in my PG, I had one bioinformatics paper. I don't know anything about that paper. तो इनके पीजी परीक्षा में एक चैप्टर, एक बुक जब आया था, एक पेपर के एग्जाम के टाइम, परीक्षा के समय, You know what? इन्हें कुछ भी नहीं पता था उसके बारे You know what was my prayer? Lord, whatever I learned should come. में। तो मेरी प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर, मैंने जो सीखा है बस उसी में से आए सवाल। Whatever I learned came. तो मैंने जो सीखा था वही सवाल आए थे How much परीक्षा marks में। I got? तो कितने मिले इनको उस परीक्षा में? 96 out of 100. वाह, Can you believe? Impossible, right? I don't know anything because it's like I am a student of biotechnology and this is some computer related biotechnology and I don't like anything about computer. तो इन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पसंद नहीं है, बट क्योंकि ये उनके सब्जेक्ट से अलग था, तभी भी जब इसका परीक्षा आया ये बहुत डर रही थी कि कैसे होगा करके। So when the results came, I was shocked. और जब इसका परिणाम निकला तो ये बहुत ही अचंभित थी। After that, it's my own life. God, for the next exam, I'll come. उसके बाद सब भूल गए, मैं अपने ही जीवन में लगी हुई थी, अगले परीक्षा के समय आपके पास आऊंगी See, परमेश्वर। at that time, it was so casual attitude that I had, and when God spoke to me, it really broke my heart. He literally during तो उस समय जो था, मेरा जो व्यवहार था या मेरा जो नजरिया था वो बहुत ही कैजुअल, साधारण तरीके से, मतलब मैं परमेश्वर को उतना ध्यान नहीं देती थी या उनकी बातों पर। So when God spoke, it was so heavy. I remember, like, when you want, only you'll come to me. तो उसके बाद These were the same words I heard. उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे ये कहा कि जब तुम सिर्फ मुझे तभी पूछती हो जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है, और ये वही शब्द है जो परमेश्वर ने इनसे कहा। I never realized that I was grieving the Holy Spirit within me. तो मैंने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि मैंने पवित्र आत्मा को अपने अंदर बहुत दुखी किया था। See, we may not be doing all the wrong things in life, but if we don't spend time with God in prayer, we are losing out on God's will for that day, for that season, for that purpose. तो जरूरी नहीं कि हम बहुत ही ज्यादा गलत चीजें या ऐसे कोई पाप कर रहे हो, ऐसा नहीं हो। आई मीन इस ऐसा ना होते हुए भी अगर हम सिर्फ प्रार्थना ना कर रहे हो, चाहे हम गलत चीजें ना कर रहे हो, लेकिन अगर अपने जीवन शैली में प्रार्थना ना हो, हम उस दिन के लिए और उस समय के लिए या उस परिस्थिति के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा है हमारे जीवन में, उस चीज को लाने से हम वंचित रह जाते हैं। See, from such pathetic life now, without seeking God, I won't go anywhere. तो उस समय का जो मेरा जीवन शैली था, उससे आज जो है मैं परमेश्वर की आज्ञा लिया बगैर, उनसे प्रार्थना या उनकी उपस्थिति में रहे बगैर मैं किसी भी चीज में आगे नहीं जाती हूँ। All that I long for is to spend time alone with Him because I want to hear Him more and more and more and only do what He wants me to do. तो अभी मेरे जीवन में मैं पूरा समय सिर्फ इसी में बिताती हूँ कि और पूरे समय इसी चीज की आग्रह करती रहती हूँ कि परमेश्वर मुझसे और अधिक बात करे ताकि मैं उनके इच्छानुसार और या उनको और गहराई से जान पाऊं।
So why I'm encouraging you right now is because at this age, God is teaching you so many things, the truths that He's laying in your heart. If you just go to Him alone in prayer, He will reveal more of Himself to you. तो मैं इस वक्त आपके इस उम्र में जब आपको इतनी सारी सच्चाई परमेश्वर के वचन के बारे में सीखने मिल रहे हैं, तो मैं इस चीज का आपको प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि आप इस चीज को और गहराई से समझे, जाने और सीखें और उसकी उपस्थिति में रहें, ताकि आप और आगे बढ़ पाए परमेश्वर में। So I would like to encourage each of you. See, I see that thirst within you. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. That is the word of God. तो मैं आप लोगों में देखती हूँ वो प्यास और वो भूख परमेश्वर के लिए, और वचन जैसे कहता है कि जो लोग परमेश्वर के प्यासे या भूखे हैं उन्हें वो आशीषित करेगा। So I don't know, like I just felt क्योंकि led by the उनका- Lord to share this with you. Hope it was encouraging to each of you. मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे ये बात बतानी चाहिए, और आशा करती हूँ कि ये आपको प्रोत्साहन देगा। See, likewise, each of us might be in different levels or stages, or like God sees us exactly where we are. For God, each of us are so special and unique. तो हर कोई जो है वो अपने जीवन में अलग अलग स्तर पर होगा, क्योंकि और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर हम हर एक को अलग रूप से देखता है। So He will fine tune us. He will align us to His purpose once we begin to yield to Him step by step. वो हमें एक एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमें या रोज रोज हमें और बेहतर बनाएगा और उसके स्वरूप में और बनाता जाएगा। See, a prayer is something that is a very crucial for a child of God. See, Jesus prayed while He was here on earth, and even now He's interceding for me in heaven, seated at the right hand of the Father. प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके बच्चों के लिए, क्योंकि यीशु यहाँ पर भी प्रार्थना करते थे, और जब वो स्वर्ग में है वो तभी भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठकर। So that should be my attitude in prayer. Lord, I want to do all that you have for me here, and also continue to pray for others and lead others into that truth. तो मेरा नजरिया भी प्रार्थना के लिए वैसा ही होना चाहिए कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाऊं और उन्हें भी आपकी तरफ ले आऊं। So I would encourage all of you, whatever you're learning, you start obeying to God. तो मैं आपको ये इस बात की प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि आप जो सब सीख रहे हैं हर रोज उस चीज को आप अमल करने की कोशिश करें। Choose to spend time alone with God. और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए चुनाव करें। Yeah. So next we'll see the different kinds of prayer. चौथे अध्याय में आगे बढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं के बारे में। So this is not like, there are different kinds of prayer, but this is not like a formula, because the Holy Spirit will prompt us each time how to pray. And it can fall in any one of these categories. तो प्रार्थना करने का कोई एकदम सही तरीका तो नहीं होता, लेकिन इसमें हम ऐसा सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें किस तरह से अलग अलग तरीकों के बारे में दिखाती या बताती या सिखाती रहे। So can I request one of us to read Ephesians chapter 6 verse 18? One of us can read in English and one of us can read in Hindi, please. इफिसियों 6 का 18, कोई एक अंग्रेजी में और कोई हिंदी में। Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful with and with and supplication for all the saints. Thank you. Anyone in Hindi? So the Bible encourages always to pray continually. तो पवित्र बाइबल हमें हर वक्त लगातार प्रार्थना करने के लिए, लगातार विनती करने के लिए कहता है। So when we ask, the Bible says, when we ask, we will receive. तो वचन कहता है जब हम मांगते हैं तब हमें मिलेगा। So let us read Mark chapter 11 verse 24.
मरकुस का अध्याय 11 का 24। Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. कोई हिंदी में पढ़ेगा मरकुस का 11:24। Thank you. So, we see very clearly when we pray, we believe and we ask and we receive. तो हम देखते हैं बहुत स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से तो हमें वो मिलता है या प्राप्त होता है। We completely believe in God's word. हम पूरी तरह परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं। God's word says, ask and you will receive. वचन कहता है कि मांगो और तुम्हें मिलेगा। So we ask God and we receive. तो इसलिए हम परमेश्वर को मांगते हैं और हमें वो मिलता है या प्राप्त होता है। Then we have the prayer of supplication. तो अगला हम देखेंगे जो है मांगने और पाने की प्रार्थना। So we read of निवेदन का प्रार्थना। पहला वाला जो हमने किया मांगने और प्रार्थना का, और ये वाला है निवेदन की प्रार्थना। so we see that when there was a huge crowd following Jesus and there was blind Bartimaeus, he cried out to God. तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जो झुंड है वो यीशु का पीछा कर रहा था, और जो अंधा बर्तिमेउस था वो था वहां पर। He was not worried about who were around him. तो वो इस बात की चिंता नहीं कर रहा था कि उसके चारों तरफ कौन है। So he just cried out, have mercy on me, son of David. तो उसने पर इस बात पे वो रोया और उसने कहा कि मेरे ऊपर दया करो दाऊद के राजा। And he received his sight. और उसने अपनी जो दृष्टि है उसको प्राप्त की। So there might be things every day in our life we need mercy, grace, and grace from God to overcome our sinful desires. तो हमारे जीवन में भी ऐसी कई चीजें होंगी जिनके लिए हमें परमेश्वर से उनकी दया और करुणा की जरूरत होगी, जो हमारे जो पाप वाले जो व्यवहार हैं उनको जीतने के लिए, उनके ऊपर जय पाने के लिए। Live a life in the Spirit, to be led in the Spirit, we need His grace. तो परमेश्वर की आत्मा में रहने के लिए या उस तरह का जीवन व्यतीत करने के लिए हमें पवित्र आत्मा में रहना पड़ेगा। So when we ask God, Lord, help me, Lord, in my situation, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु आप मुझे मेरी परिस्थिति में मेरी मदद करें, He hears our cry. वो हमारी प्रार्थना याचना को सुनता है। He comes into that situation and He takes hold of that situation. वो उस परिस्थिति में आकर उस स्थिति को वो उठा लेते हैं। So it can be even you need a job desperately. तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक नौकरी की बहुत तेज जरूरत हो। Nobody knows your situation except God. किसी को आपकी परिस्थिति के बारे में नहीं पता परमेश्वर के अलावा। The whole world might be talking about recession. चाहे पूरी दुनिया बात कर रही हो कि अभी कहीं नौकरी न मिल रही है, So many unemployments. बहुत लोगों को बेरोजगारी से गुजरना पड़ रहा हो। The news will be full of unemployment. खबरों में हर जगह के बेरोजगारी के बारे में चल रहा हो। But when we seek God, He sees our situation. He will answer our cry. जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं वो हमारी परिस्थिति को जानता और देखता और वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। See, about the blind Bartimaeus, no one else were concerned, but he knew his pain. जब बार्तिमेउस अंधा था, किसी को उसकी कोई फर्क या कदर नहीं थी, लेकिन यीशु जानता था उसके तकलीफ को। One example that comes to my mind is, when my sister was in her 12th standard, मेरे मन में एक उदाहरण आ रहा है इस वक्त कि मेरी बहन जब 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, she used to do well in all the subjects except Tamil. तो वो तमिल भाषा के अलावा सारे भाषाओं में अच्छा करती थी। So in Tamil we have something called poetry. हाँ, हिंदी में भी या तमिल में ऐसा पोइट्री कविता का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। So like other subjects she was good. So the teacher, when my mother came for the parent teachers meeting, I also used to study in the same school.
तो सारे विषयों में वो अच्छी थी, तो ये तमिल के अलावा, लेकिन जब इनकी माताजी गई अध्यापक से मिलने के लिए, So she told my mother, like, because of your daughter, like, our school will lose the reputation if she fails in the subject. तो जो अध्यापक ने उनकी माँ से किया, तुम्हारे बच्चे की वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। So we were so upset and we started praying. हम इतने दुखी थे इस बात को लेकर कि हम फिर इसके बारे में प्रार्थना करने लगे। So we didn't know whether she was going to write the exam or not, but she was good in all the other subjects. हमें नहीं पता था कि वो आगे जाके परीक्षा देने वाली है कि नहीं, लेकिन वो बाकी सारे विषयों में अच्छी थी। God made a way for her to write, and she also got good marks in that subject. परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा मार्ग बनाया जिससे वो उस परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आई। So God hears us when we go to God in that deep eagerness, Lord, desperation that only you can do it, Lord. तो परमेश्वर हमें सुनता है जब हम बहुत गहराई से और निवेदन करते हुए जब उनकी तरफ प्रार्थना करते हैं। So this is the prayer of supplication. तो ये निवेदन की प्रार्थना है। Then we have the prayer of intercession. तो मध्यस्थी के प्रार्थना के बारे में अगला देखेंगे। So intercession is usually praying on behalf of someone else. मध्यस्थी का अर्थ ये है कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। So when we know that someone has to come to salvation or something that they are suffering, we pray for them. तो हम जानते हैं कि कोई हमारे जान पहचान में अगर उससे उद्धार चाहिए या वो किसी तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इस चीज को निवेदना की प्रार्थना कहते हैं। We pray for their health. It can be anything. Relationships. We तो pray for हम others. उनके शारीरिक तौर से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर उनकी किसी भी तरह की जरूरतों की प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं। Can I request one of us to read 1 Timothy chapter 2 verse 1? One of us in English and one in Hindi, please. पहला तिमोथियुस 2:1। Amen. Thank you. हिंदी में कोई पढ़ेगा? So God wants us to pray for others. पहला तिमोथियुस 2:1। मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। So this prayer of intercession, it is very crucial because when we have this habit of praying for others, God will reveal things to us for us to pray for them. तो ये जो मध्यस्थी की प्रार्थना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम उस आदत में रहते हैं, प्रार्थना के जीवन शैली उस आदत में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें दूसरों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजों का प्रकटीकरण करेगा। So exactly when you're going through some struggle, God will prompt the other person to pray for you. तो अगर हम किसी तरह की परेशानी या अगर कोई व्यक्ति को किसी तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो परमेश्वर हमें उसके बारे में बताएगा कि हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। So that is why we are brothers and sisters in Christ. इसीलिए हमें विश्वासियों में या हम लोगों को भाई बहन कहा जाता है विश्वास में, See, we are called to मसीह में। intercede for one another. हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है। So every time when the Lord puts a burden within you, start praying. तो जब परमेश्वर आपके हृदय में किसी के लिए किसी तरह का एक बोझ डालता है प्रार्थना करने के लिए, आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। Sometimes it can be just praying in tongues. कई बार सिर्फ अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना होगा। Even when you don't understand, when the Lord puts that burden within you, start praying for that person. तो कई बार आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपके अंदर, आपके मन और हृदय में किसी के लिए उस तरह का बोझ दिया है कि आप प्रार्थना करें, तो आप शुरू कर दीजिए। If someone sends us a request in WhatsApp,
we should immediately pray for that person. तो किसी ने अगर आपको किसी तरह का मैसेज या व्हाट्सएप किया हो प्रार्थना के लिए, उनकी कोई जरूरत हो, तो आपको तुरंत उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। They might be sick or they might be going through some pain or brokenness, but when we pray, God delivers there. हो सकता है कि वो किसी तरह के टूटे हुए हालत में हो, या वो बीमार हो, या उनको चंगाई की जरूरत है, तो हम उन्हें हमारे प्रार्थना की जरूरत होती है। So this is the prayer of intercession. तो ये मध्यस्थी की प्रार्थना है। So it's not that every time you go to God, you have a pattern like, I'm going to pray this prayer, I'm going to pray that prayer. It's not like a formula, but as the Holy Spirit leads you, you can pray these prayers. तो हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं उसका कोई ऐसा सही तरीका नहीं है, अलग अलग तरीकों से हम प्रार्थना करते हैं, ये उस तरह से जैसे आपको उस वक्त पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे रहा हो। Then we have the prayer of thanksgiving. अगला है धन्यवाद का प्रार्थना। So thanksgiving is almost every time we give thanks to God. We are alive today, it's because of His grace. We have been given salvation, we are His children. That is His grace. We thank Him. तो धन्यवाद की प्रार्थना जो है वो हर उस चीज के लिए हर रोज हम कर सकते हैं, हर एक चीज के लिए जो प्रभु ने हमें आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद करते हुए। And the Bible says in Philippians, we have to present all our requests with thanksgiving. तो फिलिपियों 4:6 में लिखा है कि हमें अपने सारे जो जरूरतों को या जिन चीजों की हम आग्रह करते हैं या मांगना चाहते हैं उसको उसके सामने धन्यवाद के साथ रखें। So when we present our requests with thanksgiving to God, all our anxiousness, all our fear, everything will be removed in His presence. We keep तो जब हम परमेश्वर के निकट धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर जितना भी डर और भय है वो सब उसको निकालता है। So everything, the burden that we carry will be removed in His presence, and then we will be filled with the peace that surpasseth all understanding. तो जब हम उसकी उपस्थिति में उस बोझ को लेकर आते हैं जो हम ढो रहे होते हैं, परमेश्वर अपनी शांति हमारे अंदर भर देता है जो हमारे समझ से बाहर है। So the Bible encourages us to present all our requests with thanksgiving to God. तो वचन हमें इस चीज का प्रोत्साहन करना चाहता है कि हमें हर वो प्रार्थना परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ रखनी चाहिए। And then we see the prayer of consecration. तो अगला हम देखते हैं समर्पण की प्रार्थना। So when Jesus was in Gethsemane and He knew that His time is coming, so He's just surrendering to God. तो जब यीशु मसीह गेत्सेमनी में थे और उनको पता था कि उनका समय आने वाला है, तो वो उस वक्त सिर्फ अपने आप को समर्पण कर रहे थे। He know He was going to go through intense suffering because of the sins of the world is going to be laid on Him. उन्हें पता था कि आगे उनके ऊपर बहुत अत्यधिक रूप से कठिनाई और मुश्किलें और परेशानियां आने वाली हैं, तकलीफ दुख दर्द जो वो पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए अपने ऊपर लेने वाले थे। And He's telling, yet Lord, it's not my will, let your will be done in my life. और तब भी वो यीशु मसीह परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। So that is something of complete dedication and surrender to the Father's will that we learn from Jesus. तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम पूर्ण रूप से हमारी प्रार्थना और हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। See, even if we read about Apostle Paul, the Bible says he has been chosen to suffer for my name's sake. जब हम पौलुस के बारे में वचन में पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि उनको चुना गया था मेरे इच्छा अनुसार इस ऐसी परेशानियों में से गुजरने के लिए। So each of us have a purpose in life and each of us are called to live out that purpose by God's grace. तो हम सबका जीवन में एक उद्देश्य है जो परमेश्वर की तरफ से है और हमें सबको बुलाया गया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। So when we yield ourselves to God, जब हम अपने आप को परमेश्वर की ओर समर्पित करते हैं, His Spirit takes over us. उसकी पवित्र आत्मा हमें ले लेती है And we are able to fulfill all what God has for us.
और हम वो सब कुछ कर पाते हैं या पूर्ण कर सकते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। This is not possible in our own strength, ये हमारे खुद की शक्ति से हो नहीं सकता, but the surrendering part, we receive God's grace and we go to Him in humble surrender. That is our part. तो हमारे हिस्से में जो मुमकिन है हम वो करेंगे, जो कि अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर समर्पित करने। So the next is a prayer of agreement. अगला है सहमति की प्रार्थना। Let us read Matthew 18, verse 19. मत्ती का 18 का 19। हिंदी में कोई पढ़ेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन करते हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। So we see that if two agree on earth in Jesus' name, it will be done to them by my Father in heaven. How powerful is that? तो हम ये देखते हैं, वचन में लिखा गया है कि जब दो या तीन उसके नाम में एकत्रित होते हैं या तो परमेश्वर उनको वो उस चीज का उत्तर देता है। हम देखते हैं ये कितना ज्यादा सामर्थी है ये वचन। So there is a power that God has kept in oneness, right? तो हम देखते हैं कि एकता में परमेश्वर ने किस तरह से एक सामर्थ रखी है। So if two of us are able to agree together in prayer, so heaven is unleashed on this earth. तो हम देखते हैं कि अगर दो लोग भी, दो व्यक्ति भी आपस में सहमति से प्रार्थना करते हैं तो किस तरह से स्वर्गीय क्षेत्र में हमारे लिए सामर्थ दिया जाता है। So all that God has for us, it can be done through our humble surrendering ourselves, positioning ourselves in this prayer. तो जब हम विनम्र रूप से अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर के प्रति, तो हम देखते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हमें देते हैं। So how many of us already have people who join together in prayer? Can I see? तो हम में से कितने लोग हैं जो साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं अभी से, या पहले से करते आ रहे हैं? है आपके साथ कोई? Good. Yeah, I can see few hands. So from now, I would like to encourage, maybe in your hostel rooms, no, you can join 2 by 2. No, you can share your request to that person. And one thing is, be very confidential. What that person has shared is between you two, and seek God. तो अभी आगे से हम क्या कर सकते हैं, अगर इनमें से आप में से कोई है जो ये नहीं कर रहा है, अपने अपने हॉस्टल के कमरों में भी आप आपस में जो प्रार्थना की जरूरतों के बारे में एक दूसरे की प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि उसने आपसे जो भी कहा है या बांटा है अपने बारे में, इस बात का आप किसी और से जिक्र ना करें, ये सिर्फ आप तक रहनी चाहिए। So continuously throughout the course, you will be praying for that person, and that person will be praying for you. तो इस पूरे कोर्स के दौरान आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। So how many of us are willing to do that? आप में से कितने जन ये करने के लिए तैयार हैं? Wow, I can see every hand. So I think in the coming days, I'll ask who is your partner. तो आने वाले दिनों में मैं पूछूंगी कि आपका कौन है सहभागी या पार्टनर। See, one thing about this praying together is God releases His blessing for both of us. तो एक चीज हम इसमें देखेंगे और सीखेंगे कि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह को दोनों के लिए देता है। So from today itself, keep in your mind and walk up to that person and just ask, "Can I pray with you?" Hopefully that person will say yes. तो आज के बाद जब भी हम आप के पास समय होगा, आप उस व्यक्ति के पास जाके जानबूझकर सोच समझ कर जाइएगा कि आपको प्रार्थना में समय बिताना है, और आप जाके पूछिएगा कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और आशा करती हूँ कि शायद आगे वाले भी हाँ ही कहेगा। I think they are already thinking whom to ask. लग रहा है कि आप लोग अभी सोचने शुरू कर दिया है कि किसके साथ प्रार्थना करनी। पूछ भी रहे, बोल रहे, धक्का मार रहे हो।
Nice. Okay. And then you're also going to share the praise points that of whatever God has answered. There's going to be a list, I'm sure. तो ऐसा भी समय आएगा जब आप इस चीज की गवाही देंगे कि परमेश्वर ने आपकी कौन सी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। And then it's praying in the spirit. तो अगला है आत्मा में प्रार्थना करना या अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। So I would encourage you to read the APC publication, The Wonderful Benefits of Speaking in Tongues. It's really helpful. एपीसी की एक और किताब है पवित्र आत्मा में या अन्य भाषाओं में बात करना। ये आपकी बहुत सहायता करेगा इस बारे में और जानने और सीखने के लिए। So when you start praying in tongues, you pray in the tongues that you don't understand naturally, but it is known to God. तो जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो शायद आपको अपनी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा में ये प्रार्थना कर रहे So होते हैं। when we choose to pray in words, there might be some limitations. We might ask for certain things, we might forget to ask for certain things. But when we pray in the Spirit, the Holy Spirit enables us to pray. जब हम अपनी भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो कई बार हम कुछ चीजें भूल जाते हैं या भटक जाते हैं, प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए, कुछ अलग ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रार्थना करते हैं या अन्य भाषाओं में करते हैं, वो हर एक चीज को याद करके आपके लिए प्रार्थना निवेदन करेगा। And also exactly what we are supposed to pray, He prays through us. और बिल्कुल आपको जिस चीज की जरूरत होती होगी वो उसी पर प्रार्थना करेगा। So praying in the Spirit is one wonderful way of releasing God's purposes in our lives. तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने से आपके जीवन में परमेश्वर की चीजों के लिए द्वार खोल देता है वो। And sometimes when we don't have the words, we will be going in the right direction and not being misled in any way. और जब हमारे अंदर शब्द नहीं निकल रहे होंगे और हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो वो हमें सही दिशा में लेकर जा रहा होगा। So I would also encourage each of us to ask God to fill us with His Spirit. तो हम हर एक को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि आप परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे। See, when we are eagerly ask Him, the Lord will definitely pour out His Spirit. He is our Father, and whatever we ask, it is His desire to fill us. तो जब हम परमेश्वर से बहुत आग्रह से मांगते हैं किसी चीज का तो वो हमें देता है, और जब हम उसकी पवित्र आत्मा को देते हैं तो वो बहुत प्रसन्नता से आप में उस चीज को भर देगा। So some of us already might be praying in the Spirit. आप में से कुछ लोग पहले से ही आत्मा में प्रार्थना कर रहे होंगे। I would encourage you to pray in the Spirit more. मैं आपको और अधिक आत्मा में प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। And the Bible also says, pray in the Spirit at all occasions. So for anything, we can go to God in prayer, praying in the Spirit. तो वचन ये भी कहता है कि हमें हर स्थिति में आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। Then we have the prayer of repentance or confession. अगला है बोझ उतारने वाला प्रार्थना, बोझ उतारने वाली प्रार्थना। So if we बट दैट इज द नेक्स्ट वन। पश्चाताप या अंगीकार की प्रार्थना। पश्चाताप और अंगीकार की प्रार्थना। So we go to God if there are any sin that God is convicting us. First, we need to repent of our sins. तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर ऐसा कोई भी पाप हो या ऐसी कोई भी गलतियां हम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पहले प्रायश्चित या पश्चाताप करना चाहिए परमेश्वर के आगे। See, sometimes when we don't go to God in prayer, we might be thinking that there is nothing within us and going on casually. तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर के निकट प्रार्थना में नहीं जाते हैं तो हम अपने ही साधारण तरीकों से आगे बढ़ते रहते हैं। So Bible says in the word, the word is the one that cleanses us. So when we go to God's presence according to His word, if there is some convictions that the Lord lays in our heart, तो वचन कहता है कि बाइबल कहता है कि वचन ही है जो हमें शुद्ध करता है अंदर से, और ऐसी कई चीजें हैं जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर से हमें शुद्ध करता है और हमें बताता है किस तरह से हम उससे
जय कर पाए। So when word convicts us, we ask for God's forgiveness. तो जब वचन हमें अंदर से इस बात को समझाता है कि हम में कोई गलत चीजें हैं, तो वो हमें उसे सुधारने भी मदद करता The है। Bible says the Lord loves those whom he chastens. वचन कहता है कि जो उसे ढूंढ रहे हैं या उन्हें ढूंढ रहे हैं, उन लोग परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। So we should be open to receive God's warnings or convictions for us to grow in the Lord. तो हमें अपने हृदय को इस चीज के लिए खोलना है, जब परमेश्वर हमें हमारी गलतियों को दिखाता है या बताता है किस तरह से, तो हम इस चीज को अगर स्वीकार कर सके, वो हमारे लिए बेहतर होगा, ताकि हम और बदलाव ला पाए अपने अंदर। So otherwise what happens is that unsurrendered part will become an hindrance to our prayer life. क्योंकि अगर हम अपने जीवन में ऐसी किसी चीजों को आगे लेके चलते हैं जिसको हम समर्पण नहीं कर पाते उसकी उपस्थिति में, तो वो हमारे प्रार्थना जीवन में बाधा डालता रहेगा या प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं ला पाएगा। So then we have the prayer of unburdening. तो अगला है बोझ उतारने वाली प्रार्थना। We already saw this when we were discussing prayer of thanksgiving. तो हमने इसके बारे में इससे पहले भी धन्यवाद की प्रार्थना के दौरान बात किया था। So Bible says cast your burden on the Lord for he cares for you. वचन कहता है कि तुम्हारे बोझ को मेरे ऊपर लाद दो, ताकि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी चिंता करता हूँ। So if there are any concerns or any burdens in our lives, if we cast it to the Lord, then we can pray with an open heart, with an open mind. अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई विषय है, ऐसी कोई बातों के ऊपर आपको चिंता है, तो आपको अपना ये जो बोझ है वो परमेश्वर के निकट रखना है, क्योंकि वो आपके लिए चिंता करता है या आपका ध्यान रखता है। Otherwise, that fear, that anxiety, that will only be in our mind always. We won't be able to focus on Jesus, what he has for us for that day. तो वरना क्या होगा, अगर हमने उस चीज को उतारा नहीं, तो पूरे समय हमें उसी बात का डर और भय रहेगा और हम वो नहीं ले पाएंगे परमेश्वर से जो वो हमें देना चाहता है। And then we have the prayer of faith for healing. और अगला हम देखेंगे चंगाई के लिए विश्वास की प्रार्थना। So we see in Mark chapter 5 verses 25 to 34, a woman who had an issue of blood, she was bleeding continuously for 12 years. So she hears about Jesus. She had tried everything from her perspective. But when she, Mark 5, 25 to 34. अच्छा, अगला हम देखेंगे मरकुस का 5वां अध्याय 25 से लेके 34। ओके। So, if only I may touch his clothes, I shall be made whole. That was her confession. तो उस वक्त उसने इस बारे में कहा कि अगर मैं सिर्फ आपके वस्त्र को छू पाऊं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। And she went and touched the hem of Jesus's garment. और वो गई और वो उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। So power went from him and she was healed instantly. तो यीशु के अंदर से सामर्थ उसकी तरफ गई और वो उसी वक्त तुरंत चंगा हो गई। So we see that Jesus addressing her daughter, your faith has made you well. तो हम देख रहे हैं यहाँ परमेश्वर उसको कह रहे हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। So when we believe in God for our healing, जब हम परमेश्वर में इस बात का यकीन करते हैं हमारे चंगाई के लिए, he heals us. वो हमें चंगा करता है। And then we have the prayer of waiting and watching. So we'll continue tomorrow. Thank you for your patience. God bless you all. तो अगला जो है आगे हम सीखेंगे जागृति की प्रार्थना के बारे में, और ये अपेक्षा के बारे में हम कल सीखेंगे इसके बारे में। धन्यवाद Thank you. करते हैं आप सभी का। Thank you for those of us who have joined online.